Hello students, welcome to all in this social science class once again. Dear students, in previous module we have discussed about the Tughlaq dynasty and I have told you about the important rulers of Tughlaq dynasty. Today in this module we are going to discuss about Lodi dynasty. So let's discuss. As I have told you that in 1451, Behlol Lodi attacked the Sayyid dynasty and established Lodi dynasty. Behlol Lodi was an able ruler. He was also a competent general. He ruled like a feudal lord. He kept the nobles by declaring that he is one among them. As he was ruler, he never sat on the throne. Several revolts occurred in Doab, but he successfully suppressed them. He also annexed the Jaunpur and other states. He was a religious person and his rule extended from Punjab to Bihar. So my dear students, 1451 में बेहलोल लोदी ने सैयद डायनेस्टी पर अटैक किया और लोदी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। बेहलोल लोदी एक एबल रूलर यानी योग्य शासक था। वह एक अच्छा जनरल भी था, मीन्स एक अच्छा योद्धा भी था। उसने एक फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंत की तरह रूल किया। उसने नोबल्स को यह डिक्लेयर किया कि वह भी उन्हीं में से एक है। मीन्स उसने एक सुल्तान की तरह रूल नहीं किया, बल्कि एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह रहा। हालांकि वह एक रूलर था, बट वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। उसके टाइम में दोआब एरिया में कई रिवोल्ट हुए, बट उसने सभी रिवोल्ट्स को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया, यानी सभी रिवोल्ट्स को दबा दिया, कुचल दिया। बेहलोल लोदी एक रिलीजियस पर्सन था, एक धार्मिक पर्सन, और उसका रूल पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। Dear students, after Behlol Lodi, his son Sikandar Lodi got the throne in 1489. He was very kind and generous towards the Muslims and ulemas. He used to give money to poor Muslims and poor widows for the marriage of their daughter. Sikandar Lodi was very jealous towards Hindus and he did not tolerate Hindus. He destroyed the temples of Hindus and built mosques in their place. He reimposed jizya, which was a religious tax on Hindus. In 1506, he founded the new city of Agra and made it his capital. So बेटा, बेहलोल लोदी के बाद उनके बेटे सिकंदर लोदी को 1489 में गद्दी मिली। वो बहुत ही काइंड और जेनरस रूलर था, यानी दयालु और उदारवादी था। वह पुअर मुस्लिम्स और पुअर विडोज यानी गरीब मुस्लिम्स और गरीब विधवाओं को उनके डॉटर्स की मैरिज के लिए मनी भी प्रोवाइड करवाता था। विधवा बेटा जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको विडो यानी विधवा कहा जाता है। सिकंदर लोदी को हिंदू से काफ़ी जेलस थी, यानी हिंदू से बहुत ईर्ष्या थी। सिकंदर लोदी हिंदूस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वह हिंदूस को टॉलरेट नहीं करता था। उसने इवन हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया और उसकी जगह पर मस्जिदें बनवा दी। उसने जजिया को फिर से इम्पोज कर दिया, मीन्स जजिया को फिर से लागू कर दिया। जजिया जो कि हिंदूस पर लगाया जाने वाला एक रिलीजियस टैक्स था। सिकंदर लोदी ने 1506 में उसने आगरा सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की और उसे अपनी कैपिटल सिटी बनाया। Dear students, after the death of Sikandar Lodi, Ibrahim Lodi became the Sultan in 1517. Ibrahim Lodi was an intelligent, efficient and brave ruler. He faced many rebellions during his period. He was failed to bring Rana Saga of Mewar under his control. So my dear students, सिकंदर लोदी की डेथ के बाद 1517 में इब्राहिम लोदी
सुल्तान बन गया। इब्राहिम लोदी एक इंटेलिजेंट, एफिशिएंट और ब्रेव रूलर था। मीन्स वो एक बुद्धिमान, कुशल और एक बहादुर शासक था। उसने अपने रूल में कई विद्रोहियों का सामना किया, बट वो राणा सांगा को अपने कंट्रोल में करने में असफल रहा। Dear students, in order to make the administration more efficient, he recruited the young and brave officers to make his military more powerful. He changed the old and senior military officers. When he changed the old official, the nobles became unhappy. Daulat Khan, who was a governor of Punjab, rebelled against Ibrahim Lodi. He invited Babur, who was the ruler of Kabul, to attack India. Babur attacked or invaded India, and in the Battle of Panipat in 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi and he was killed in this battle. With the death of Ibrahim Lodi, in the first Battle of Panipat, Delhi Sultanate came to an end and Babur established Mughal ruler in India. So the students, with the invasion of Babur, the Delhi Sultanate declined and Mughal era started in India. So बेटा, इब्राहिम लोदी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट यानी कुशल बनाने के लिए और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। उसने ओल्ड एजेड एंड सीनियर ऑफिसर्स को हटा दिया। जब उसने अपने ओल्ड एंड सीनियर ऑफिसर्स को हटा दिया तो नोबल्स उससे खुश नहीं हुए। वो इब्राहिम लोदी से नाराज हो गए। दौलत खान, जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट विद्रोह किया और उसने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए बाबर को इनवाइट किया, जो कि काबुल का रूलर था। दौलत खान ने बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए बुलाया और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वो इस बैटल में यानी लड़ाई में मारा गया। पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी की डेथ के साथ ही दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और बाबर ने इंडिया में मुगल रूल इस्टेब्लिश कर लिया। इस तरह बाबर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत हुई। Dear students, till now we have studied about the various dynasties of Delhi Sultanate. Now I am telling you about the governance during the Sultanate period. So let's discuss about the administration during Sultanate period. The Sultan was the head of the state, so he dominated the central government. He was also the chief executive and highest court of appeal. And in simple words, we can say that the whole administration was controlled by Sultan and his decision was supreme in any matter. In order to run the administration smoothly, he appointed many ministers who worked under the control of Sultan. So बेटा, सल्तनत पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लेट्स डिस्कस। सो उस टाइम सुल्तान स्टेट का हेड होता था, इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर हावी था। पर चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यकारी होता था। वी कैन से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रूल सुल्तान के थ्रू कंट्रोल था। किसी भी मामले में उसका डिसीजन ही सुप्रीम था यानी सर्वोच्च होता था। एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने कई मिनिस्टर्स अपॉइंट किए और जो कि वो सुल्तान के अंडर काम करते थे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट ऑफिशियल वाज दीवाने वजरत। ही वाज ऑल्सो नोन एज वजीर and looked after the financial minister and central administration. He was like a prime minister. So dear students, दीवाने वजरत को वजीर के रूप में जाना जाता था।
फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वही दिखता था। दीवान वजरत की पोजीशन आज एक प्राइम मिनिस्टर की तरह होती थी। नेक्स्ट ऑफिशियल वाज दीवान अर्ज। ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइज द मिलिट्री एंड मेंटेन complete discipline in the army. He was like a defense minister. So बेटा दीवान अर्ज मिलिट्री का हेड यानी सेना का प्रमुख होता था और मिलिट्री को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करता था। मिलिट्री को संभालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका संगठन दीवान अर्ज का ही होता था। वह सेना में कंप्लीट डिसिप्लिन रखता था और वह एक डिफेंस मिनिस्टर की तरह होता था। नेक्स्ट ऑफिशियल वाज दीवान इंशा। ही वाज द इंचार्ज ऑफ द एंटायर स्टेट विद द रूलर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ही वाज लाइक अ फॉरेन मिनिस्टर। सो बेटा दीवान इंशा इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूलर्स के और अपने अंडर ऑफिसर्स के साथ पूरे स्टेट का राज्य का इंचार्ज होता था। एंड देन नेक्स्ट ऑफिशियल वाज Chief Barid. Barids were the spies. They were the ears and eyes of Sultan and keep updated the Sultan whatever was happening in the entire state. बेटा बारिद जो है जो जासूस होते थे वह सुल्तान के कान और आंखें थे और सुल्तान के अंडर रहते थे। पूरे राज्य में स्टेट में जो कुछ भी हो रहा होता था वह सुल्तान को बताते थे। मैं सुल्तान को अपडेट रखते थे कि उसके राज्य में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वाजी उल कुजैत। क्वाजी उल कुजैत वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी लाइक द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स झगड़ों को निपटाने न्याय दिलवाने का काम काजी का होता था। वकील दर लुक्ड आफ्टर द पर्सनल कंफर्ट ऑफ द सुल्तान एंड हिज फैमिली। He also looked after the karkhanas where goods were produced for the royal family. He also maintained the proper record of these karkhanas. So बेटा वकील दर सुल्तान और उसकी फैमिली की पर्सनल कंफर्ट यानी उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, उनकी अच्छे से देखभाल करते थे। उन्होंने कारखानों की भी देखरेख की जहां रॉयल फैमिलीज के लिए गुड्स रेडी होती थी। उन्होंने इन कारखानों के प्रॉपर रिकॉर्ड को भी बनाए रखा। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान हु लुक्ड आफ्टर द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सुल्तान। So dear students, in this module we have discussed the last dynasty of Delhi Sultanate and discussed the administration system during Sultanate period. Thank you. Stay blessed and stay happy. Bye bye.